So any question regarding the last lecture? कोई सवाल है किसी तरह का, पूछ सकते हो। हालांकि पूछने लायक था नहीं उसमें। So we have seen the distribution, rather origin and distribution of the sympathetic fibers of the autonomic nervous system. Now we begin with the parasympathetic system. हमने शुरू कर दिया था। Yes, in the parasympathetic system is anatomically and physiologically called as craniosacral outflow. It means the connector neurons, दो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं हम, connector neurons of the parasympathetic either lies in the cranial cavity or in the sacral region of the spinal cord. cranial cavity का मतलब ब्रेन में, ब्रेन मतलब ब्रेन स्टेम के अंदर, ब्रेन स्टेम मीन्स मेडुला पॉन्स और मिड ब्रेन का जो एरिया है ब्रेन का, वहां पे जो ब्रेन मैटर है उसमें जो न्यूक्लियाई ग्रुप्स हैं, न्यूरॉन्स के ग्रुप हैं, वहां पे ये सिचुएटेड है क्रेनियल कैविटी के अंदर। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, 4 cranial nerves arising from the brain stem carries the preganglionic parasympathetic fibers arising from the connector neurons. These cranial nerves are 3rd oculomotor, 7th facial, 9th glossopharyngeal and 10th vagus nerve. 4 नर्व के साथ फाइबर्स आ रहे हैं। All these fibers are preganglionic fibers arising from the connector neurons. So oculomotor is the 3rd highest nerve, जो सबसे ऊपर मौजूद है। उसके साथ जो पैरासिम्पैथेटिक का न्यूक्लियस है उसको कहते हैं अपन एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। वो हम कल बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स runs along with the 3rd cranial nerve, reaches behind the eyeball and relays there into the parasympathetic ganglia. Okay, that ganglia is known as ciliary ganglia. From the ciliary ganglia, the small fibers arises. These are postganglionic fibers and form the short ciliary nerves. These short ciliary nerves are supplying two important smooth muscle fibers which are present intraocularly. They are intraocular muscles in comparison to the extraocular muscles which are moving the eyeball. They don't move the eyeball, they control the diameter of the lens and the pupillary aperture. So constrictor pupillae muscle, मतलब pupil is a space, उसको अगर कंस्ट्रिक्ट करती है, छोटा करती है कोई मसल तो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल कहलाती है। ठीक है, दे आर सर्कुलरली प्लेस्ड अराउंड द आइरिस, इन द आइरिस, दे आर सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, शॉर्ट सिलियरी नर्व एंड द सिलियरी मसल which controls the modifies the diameter of the lens, that is ciliary muscle. ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती हैं which are coming along with the 3rd cranial nerve. Then the second one is the facial nerve. फेशियल नर्व के साथ जो न्यूक्लियस होता है इसका पैरासिम्पैथेटिक का, दैट इज नोन एज सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस एंड द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर कम्स अलोंग विद द फेशियल नर्व, रीचेस टू द एरिया ऑफ द फेस एंड दे आर रिलेड इनटू द 2 गैंग्लिया located in the face area, pterygopalatine ganglia and the submandibular ganglia, and they are supplying 3 important areas: लैक्राइमल ग्लैंड जो आंख में होता है, सलाइवरी ग्लैंड एंड नेजल ग्लैंड नाक में जो होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर 3 इन नंबर एज यू मस्ट बी नोइंग, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड. So sublingual and submandibular are supplied by the facial nerve. Postganglion fiber arising from these ganglia supplies the salivary gland. Then the 3rd nerve is the glossopharyngeal, 9th cranial nerve. The nucleus which belongs to the parasympathetic system in the 9th cranial nerve is known as the inferior salivary nucleus. उसका नाम है inferior salivary nucleus. The fibers preganglionic runs along with the 9th cranial nerve, comes into the area of the neck region and they are related into the otic ganglia. यहाँ पे आता है ये otic ganglia, यहाँ मौजूद है कान के पास ऊपर, otic ganglia. Fiber relay there. Postganglionic fibers from the otic ganglion neurons arises and supplies, most important,
salivary parotid gland, ये जो parotid gland यहाँ मौजूद है इसको सप्लाई आती है. 9th cranial nerve glossopharyngeal. And the last is the 10th cranial nerve, the vagus nerve, the biggest, longest parasympathetic nerve in the body. The preganglionic fibers arising from the dorsal nucleus of the vagus nerve. Vagus nerve के कई nucleus है. Dorsal nucleus of the vagus nerve is the parasympathetic nucleus. Preganglionic fiber runs along with the vagus nerve throughout the head and neck region, and it supplies various maximum areas. What are these areas? Muscles of the trachea and bronchial tree, bronchial glands. Mucus glands are there in the tracheobronchial tree. They are supplied by the vagus nerve. Then various parts of the heart, including the SA node, atria, and the conducting pathway. Pulmonary blood vessels. The gastrointestinal tract, esophagus से लेके stomach, small intestine, large intestine, up to the middle of the colon, up to middle of the large colon is supplied by the vagus nerve. Of course, the gallbladder is also receiving the supply. Then the next component of the parasympathetic is sacral outflow. ये तो cranial outflow था. Sacral outflow, as you can see, arises from the sacral segment 2, 3, 4 here. ये cranial outflow था जो सप्लाई जा रही है. इस तरफ sympathetic दिखा रखा है, इस तरफ parasympathetic दिखा रखा है. ये cranial outflow था और ये sacral outflow, sacral segment 2, 3, 4. From there the fiber arises from the splanchnic nerve. तो क्या कह रहे हैं इसको? pelvic splanchnic nerve, and it supplies the area, that is the remaining part of the large intestine, that is sigmoid colon, rectum, or supplied by the, and descending colon supplied by the parasympathetic fibers arising from the sacral region S2, 3, 4. Urinary bladder, most important, and the reproductive organs both in males and females are supplied by the sacral parasympathetic fibers. ये इसकी एनाटमी है सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की. ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट नेम्स आर गिवन. ऑन वन साइड इज द सिंपैथेटिक, ऑन अदर साइड इज द पैरासिम्पैथेटिक. ये इधर पैरासिम्पैथेटिक आ गया है, ये इधर सारा सिंपैथेटिक है. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स which act involuntarily or subconsciously, they are supplied or innervated by either sympathetic or parasympathetic. Most of the organs they get dual supply. ड्यूअल का मतलब दोनों जाएंगे उसके ऊपर, सिंपैथेटिक भी जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक भी जाएगा. और जहां जहां भी ड्यूअल सप्लाई है वहां पे एक दूसरे के एक्शन एंटागोनिस्टिक आते हैं. एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस actions of the sympathetic and parasympathetic on the same organ are always antagonistic most of the time. Only at few places this as a synergistic action is there. बाकी ज्यादातर जगह एक दूसरे का एक्शन अपोज करते हैं ये. Now, neurotransmitters of the autonomic nervous system. You see, connector neuron is there, effector neuron is there. Between them is the synapse. Okay, and synapse means a communication link between the two neurons. This communication link can be of two types in the central nervous system. It can be an electrical type of the connection, और इट कैन बी ए केमिकल टाइप ऑफ कनेक्शन. हम यहाँ केमिकल की बात कर रहे हैं. जहां जहां भी केमिकल सिनेप्सेज होती है बॉडी के अंदर, देयर इज अ गैप बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. गैप होता है इसके अंदर, एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड बाय द रिलीज ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच वी कॉल एज द न्यूरोट्रांसमीटर. एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, sympathetic and parasympathetic are named accordingly. So parasympathetic fibers release acetylcholine as the neurotransmitter at their nerve terminals. So this system, parasympathetic system, is known as cholinergic system. It is known as cholinergic system because acetylcholine is the neurotransmitter. First thing. In case of sympathetic nervous system, it is the norepinephrine
विच इज द न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे. नॉरएपिनेफ्रिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर. सो दिस सिस्टम इज नोन एज एड्रिनर्जिक सिस्टम. नाम वही, नॉर एड्रिनर्जिक नहीं कहते इसको, नाम वही देते हैं. इट इज एन एड्रिनर्जिक सिस्टम बिकॉज the similar actions which are brought about by sympathetic activity can also be brought about by adrenaline and dopamine. So this is an adrenergic system. So sympathetic is an adrenergic system, parasympathetic is a cholinergic system. Now this system is based on the basis of release of chemical substance at the post ganglionic nerve ending. दो नर्व एंडिंग्स है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी है इस सिस्टम में और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी है, दोनों मौजूद है. हमने नॉमेनक्लेचर दिया है केमिकल सब्सटेंस रिलीज एट दी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग एट दी इफेक्टर एंड ऑर्गन पे, जहां ये सप्लाई जा रही है वहां कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है उस पे बेस्ड है ये. व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट इज बिकॉज दैट एट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोनल सिनेप्स, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स भी है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी है, but both these fibers use acetylcholine as the neurotransmitter. चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक का हो, यहाँ पे जो एक्शन आ रहा है वो एसिटाइलकोलिन से आ रहा है. So all preganglionic fibers of the autonomic nervous system may be sympathetic, may be parasympathetic, doesn't matter. They use acetylcholine as the neurotransmitter. We can say ganglionic transmission is always cholinergic, while the postganglionic fibers of the parasympathetic uses acetylcholine as the neurotransmitter, while postganglionic fibers of the sympathetic uses norepinephrine or noradrenaline as the neurotransmitter. There is an exception. Sympathetic में exception, except those areas or those fibers supplied to the sweat glands in erector pili muscles, they are cholinergic in nature. तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है दोनों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहा है इफेक्टर एंड ऑर्गन के ऊपर. एसिटाइलकोलिन भी कर रहा है और नॉरएपिनेफ्रिन भी कर रहा है. एपिनेफ्रिन नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा. न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक का नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन नहीं है. बट एट द स्वेट ग्लैंड इट इज एसिटाइलकोलिन. So sympathetic is releasing both acetylcholine and the norepinephrine, but that is an exception. Otherwise, at most of the places, it is using norepinephrine as the neurotransmitter. So where occurs in the body cholinergic transmission? कहाँ होता है? All गैंग्लियक ट्रांसमिशन इन दी एएनएस, सारे गैंग्लियाज पे एसिटाइलकोलिन यूज हो रही है. पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आर कोलिनर्जिक, एसिटाइलकोलिन यूज हो रही है. सिंपैथेटिक फाइबर टू द स्वेट ग्लैंड आर कोलिनर्जिक, एसिटाइलकोलिन यूज हो रही है. ठीक है. इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एसिटाइलकोलिन द न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ चुके होंगे ना, तो पढ़ा दिया होगा. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल्स के अंदर कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन. देन इन द सीएनएस ब्रेन मेनी न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक रिलेटेड विद स्लीप एंड वेकफुलनेस, अराउजल रिएक्शन के साथ काम आते हैं. एंड इट इज एक्टिंग एज लोकल हार्मोन्स इन द गट आल्सो, कई जगह रिलीज होती है. इन द सलाइवरी ग्लैंड इट इज रिलीज. सो एसिटाइलकोलिन इज वेरी कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाइल एपिनेफ्रिन इज प्रेजेंट ओनली एट द फ्यू प्लेसेस. अब आते हैं हम रिसेप्टर्स के ऊपर. नाउ सी वी टॉक ऑफ द एपिनेफ्रिन. हम दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन भी कर सकते हैं, एड्रेनलिन भी कर सकते हैं. दोनों में फर्क क्यों है? ये दोनों ही नाम एक के लिए यूज क्यों करें? नाम का फर्क क्यों आ रहा है? कोई एपिनेफ्रिन बोलता है, कोई एड्रेनलिन बोलता है. क्यों? दोनों में फर्क है क्या? होना चाहिए क्या नाम के हिसाब से? हम जब नॉमेनक्लेचर देते हैं तो उसके पीछे कारण होते हैं हमेशा. इसमें क्या कारण है? नेफ्रीन, नेफ्रो किससे रिलेटेड है?
किडनी से, ठीक है। और एपिनेफ्रिन मोस्टली कहाँ से रिलीज होती है? एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल ग्लैंड मान लें आप, तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे किडनी की जो किडनी पे जो इसकी पोजीशन है, ये मान लो किडनी है, इसके ऊपर है तो ग्लैंड यहाँ सिचुएटेड हो और एक यहाँ साइड में सिचुएटेड हो। साइड में होगा एड्रिनल हो गया, ऊपर होगा तो सुप्रारीनल हो गया। सुप्रारीनल है तो एपिनेफ्रिन हो गई, साइड में है तो एड्रेनलिन हो गई, है वही चीज। इट इज जस्ट द लोकेशन ऑफ द suprarenal or the adrenal gland which changes the nomenclature of adrenaline or epinephrine, norepinephrine or noradrenaline, doesn't matter. So what I am to say that suppose we take adrenaline example, the adrenaline acting on the heart, it causes contraction of the myocardial muscles, activity बढ़ाता है। Same adrenaline in the respiratory tract causes relaxation of the smooth muscle fiber. In the gut, it is relaxing the smooth muscle fiber. Acetylcholine gut में मसल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, एसिटाइलकोलिन हार्ट की एक्टिविटी को कम करता है। तो सेम न्यूरोट्रांसमीटर एट डिफरेंट प्लेसेस इज ब्रिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। एक जगह वो इनहिबिट कर रहा है, एक जगह वो एक्साइट कर रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? केमिकल सब्सटेंस वही है। इट मीन समथिंग इज डिफरेंट एट द रिसेप्टर लेवल एट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर हैं जो इंटरेक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, वो डिफरेंट हैं, and because of that there is a change in the pattern of reaction of that particular target cell. So it is the mediated reaction through the receptors into the cell which are changing it. It means receptors are very, very important. Secondly, depending upon the type of the receptor, we know there are drugs we have developed which specifically act on a particular type of the receptor and blocking or enhancing that particular reaction of that system. So they are therapeutically useful also, knowing about the different type of the receptor. So acetylcholine has got two different type of the receptors. One are known as nicotinic receptors, others are known as muscarinic receptors. Nicotinic receptors are so called because these receptors are excited by the application of the chemical substance nicotine. वो निकोटीन से एक्साइट होते हैं, इसलिए वो निकोटिनिक रिसेप्टर कहलाते हैं। तो एसिटाइलकोलिन से भी होंगे, बट दे रेस्पॉन्ड टू द निकोटीन आल्सो। So these receptors are known as nicotinic receptors. They are receptors of the acetylcholine, and these receptors are of two types again, N1 type and 2 type. N1 nicotinic ones, N आ रहा है निकोटीन से, nicotinic 1 receptors and nicotinic 2 receptors, N1 and N2. N1 receptors, as you can see, are found at the neuromuscular junction. N1 कहाँ है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है। किससे ब्लॉक कर सकते हैं उसको? ये निकोटीन का इफेक्ट, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे किससे ब्लॉक कर सकते हैं? पढ़ाया होगा डेफिनेटली। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स बताई होगी, एक नाम बता दो। डी ट्यूबोकुरारिन, डी ट्यूबोकुरारिन। ध्यान दीजिएगा, हम टीवी भी देखते हैं, पुराने जमाने की बातें सुनते हैं, जब शिकार करते थे तो जो तीर होता था उसके आगे एक काला सा सब्सटेंस लगाते थे, केमिकल सब्सटेंस निकलता था, जो वो मारा जानवर पैरालाइज हो जाता था, मरता नहीं था, पैरालाइज हो जाता था। क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो मसल डीपोलराइज नहीं होंगी और रिलैक्स हो जाएंगी, सांस बंद हो जाएगी, एनिमल धीरे धीरे मर जाएगा। So nicotinic receptors are, these N1 receptors are blocked by the D-tubocurarin. But this D-tubocurarin does not block the other actions of the acetylcholine. That's why we say these receptors are different. Neuromuscular junction पे receptor different है, क्योंकि वो एक्शन D-tubocurarin से ब्लॉक होता है, मगर ये D-tubocurarin acetylcholine के और receptors के एक्शन को ब्लॉक नहीं करती. It means they are different. So nicotinic N1 receptors are there. Then N2 receptors are receptors which are present elsewhere. कहाँ होंगे वो? गैंग्लिया पे होंगे. They are present in the autonomic ganglia. That ganglia may be sympathetic ganglia or it can be parasympathetic ganglia, where the transmission, as we have seen, is cholinergic. Transmission is cholinergic in the autonomic ganglia, despite maybe sympathetic or parasympathetic. And
action of acetylcholine at autonomic ganglia can be blocked by a different drug. Atropine, sorry, what can be used? क्या दिया है यहाँ पे? Atropine can block the, can it block? No. Hexamethonium is the drug which blocks the ganglionic action of the acetylcholine. Hexamethonium, decamethonium are ganglion blocking agent. ये फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे जाकर के, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. So these are nicotinic receptors of the acetylcholine present at two places. Then the second category or class of receptors which are most abundant are the muscarinic type of the receptors. ये muscarinic receptors है, पहला nicotinic और दूसरा muscarinic receptor present on plasma membrane of all parasympathetic effector and organs. जहां जहां भी पैरासिम्पैथेटिक का सप्लाई जा रहा है वहां पे ये मस्करिनिक रिसेप्टर मौजूद है. तो मस्करिनिक रिसेप्टर भी कई तरह के होते हैं. कहाँ गया? यहां नहीं दे, कहा गया है. तो मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर 5 टाइप. वो M से लिखते हैं उसको, ये N था, अब M आएगा. M1, M2, M3, M4, M5. इनकी डिटेल्स फिर फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे. मगर सबसे ज्यादा हमारे अबंडेंट रिसेप्टर जो है वो मस्करिनिक, वो है M2 टाइप. M2 आर द मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट गैंग्लियोनिक इफेक्टर एंड ऑर्गन्स, जहां पे एक्शन होगा. ये मस्करिनिक का नाम कहां से आ गया? ये टोड स्किन से जो जहर निकालते हैं हम, उसमें मस्करिन होती है और उसके एक्शन जो है एसिटाइलकोलिन से सिमुलेट करते हैं, इसलिए ये दिया मस्करिनिक रिसेप्टर. मतलब जो एक्शन एसिटाइलकोलिन कर सकती है वो एक्शन सारे मस्करिन भी कर सकती है अगर एनिमल को दिए जाए तो. दैट्स व्हाई दोज रिसेप्टर्स आर नोन एज मस्करिनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर. अब आते हैं सिंपैथेटिक के ऊपर. जस्ट लाइक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक हैव गॉट इट्स ओन रिसेप्टर. जैसा मैंने कहा, सिंपैथेटिक कहीं पे एक्साइटेशन करता है, कहीं पे इनहिबिशन करता है. तो दो तरह के रिसेप्टर हैं सिंपैथेटिक के, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर. ये हम थोड़ा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, हम सवाल पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर और एड्रिनोसेप्टर. नाम अलग अलग है, चीज वही है. एड्रिनोसेप्टर और एड्रिनो रिसेप्टर दे आर सेम, दो तरह के हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स. अल्फा रिसेप्टर्स आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, alpha 1 and alpha 2. Beta receptors are further subclassified into three categories: beta 1 receptor, beta 2 receptor and beta 3 receptor. Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3. एक मुख्य चीज याद रखने की इसमें, alpha 1 and beta 1, 1 नंबर पे जो आ रहा है, these receptors are excitatory in nature. तो जहां पे एक्साइटेशन होना है वहां पे अल्फा रिसेप्टर होगा या बीटा रिसेप्टर होगा. बीटा 1 होगा, अल्फा 1, बीटा 1 एक्साइटेटरी. अल्फा 2, बीटा 2 आर इनहिबिटरी इन नेचर. कहीं पे स्मूथ मसल को रिलैक्स करना है, बीटा मसल आ जाएगी. कहीं पे स्मूथ मसल को एक्साइट करना है, अल्फा 1 रिसेप्टर आ जाएगा, बीटा 1 रिसेप्टर आ जाएगा. ठीक है. सो बीटा 2 आर इनहिबिटरी इन नेचर, beta 1 are excitatory in nature, alpha 1 are excitatory in nature, alpha 2 are inhibitory in nature. Third receptor in the beta category is the beta 3, beta 1, beta 2 and beta 3. So beta 3 receptors are found only in one tissue, adipose tissues of the body. Adipose tissue, वहां पे beta 3 होते हैं और कहीं नहीं होते usually. So at most places either it is the alpha 1 receptor or beta 1 receptor, or alpha 2 receptors are very rare, they are inhibitory in nature. Beta 2 receptors are also inhibitory. ये सब जानते हैं सिंपैथेटिक का क्या अहमियत है. डोमिनेंस बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम इज कॉज्ड बाय द फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस. इस सिचुएशंस की जिनकी हम बात करते हैं, इमरजेंसी, एम्बरासमेंट, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, these situations when the person faces, then sympathetic get excited or activated, and the alarm reaction
फाइट और फ्लाइट, जैसे कोई सामने कुत्ता ही आ गया तो अभी डर लगता है, भागना पड़ता है, तो पहली कोशिश होती है कि सामना करें, तो डर भी लगता है और फिर भागते हैं। तो फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या मरो वाली सिचुएशन है, भागना है। तो सिंपैथेटिक प्रिपेयर द पर्सन और द एनिमल टू फेस ऑल दिस सिचुएशन। वो सारी आएंगे, हम बात करेंगे उनकी। मोटा मोटा हार्ट रेट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, अलग जो अनअसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड फ्लो घट जाएगा, स्किन में जरूरत नहीं है यहाँ घटा दिया जाएगा, हार्ट में बढ़ेगा, ठीक है, मसल्स में बढ़ेगा, इंटेस्टाइन में घट जाएगा। तो एट देयर विल बी रादर वी कैन से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, एयरवेज सांस लेने के लिए डायलेट हो जाएंगी, trachea, bronchial tree will dilate so that there is a ease in the respiratory process. All these will occur. Glucose level increase. Now effect, दो एक और मोटी चीज आ रही है, effect of sympathetic system lasts longer when it is activated. Effect of parasympathetic system lasts for a very small duration when it is activated because acetylcholine जब रिलीज होती है, जहां भी रिलीज होती है वहां पे उसका काम तमाम करने के लिए एंजाइम मौजूद है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इज देयर। मगर एड्रेनलिन के लिए ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता। तो एसिटाइलकोलिन इज द स्मॉलेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर, फास्टेस्ट एक्टिंग एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, व्हाइल द एड्रेनलिन इज ए रादर डाइअमाइन, बड़ा है थोड़ा मॉलिक्यूल, इसके वहां से जहां रिलीज होती है वहां से हटाने के जो तरीके हैं वो बहुत लंबे हैं, समय लगता है, तो ये वहां पे ज्यादा देर तक रहती है, तो इफेक्ट भी ज्यादा देर तक रहता है। तो इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक्स आर लॉन्ग लास्टिंग इन कंपैरिजन टू द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। So in contrast to the sympathetic activity, parasympathetic are involved in the phenomena we can say rest and digest. डाइजेस्टिव एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, सिक्रेशन बढ़ाता है, इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करके आगे बढ़ाता है। इसको बाद में देखेंगे, तो ये कंपैरिजन है, मोटा मोटा आगे देखेंगे हम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मोटा मोटा एक्शन, डिटेल बाद में आएगी। सिंपैथेटिक इंक्रीजेस द हार्ट रेट, आगे बढ़ते। वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन, वेन्स जो है बॉडी की वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, क्या फायदा, ब्लड सेंटर की तरफ आता है वहां। रेस्पिरेटरी मसल्स, ब्रोंकियो डायलेशन इज देयर, ईज ऑफ रेस्पिरेशन इज देयर। पैरासिम्पैथेटिक जीआईटी इनकी मोटिलिटी बढ़ाता है, सिक्रेशन बढ़ाता है, डाइजेशन बढ़ाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, समझते हो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, बिल्कुल ठीक है। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, किडनी डायूरेसिस, कॉन्ट्रैक्शन एंड इजैकुलेशन एंड इरेक्शन, दोनों अलग अलग एक्शन है। तो ज्यादातर जगह आप देखिएगा अलग अलग एक्शन आ रहे हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। नाउ इनके एक्शन हम अभी डिटेल में देखेंगे, बट हाउ इज द एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्ड, ठीक है। ये हम पहले बता चुके हैं, सम ऑर्गन्स है ओनली सिंपैथेटिक इनर्वेशन, सम है व्हाट ओनली पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है व्हाट ड्यूअल इनर्वेशन, ज्यादातर में ड्यूअल आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर सेंटर फॉर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक एक्टिविटी इज द हाइपोथैलेमस। न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में है, न्यूरॉन 4 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में, ठीक है, इनका कंट्रोल हो रहा है हाइपोथैलेमस से। रेगुलेट द टोन बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक, टोन की हम बात कर चुके हैं। Autonomic tone is there, means under resting condition activity of sympathetic and parasympathetic both are going on, and how much that should be is being controlled by the hypothalamus। दोनों का बैलेंस बना के चलता है जिससे कि आपका बॉडी सही फंक्शन करे। Now because we are not aware of the autonomic activity and most of the time we can't change it also, it means conscious level of the brain is hardly involved in the regulation of the autonomic nervous system. So major is the hypothalamus, major control area। और इनपुट कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस के पास इनपुट कहीं से जाना चाहिए कि इनको एक्टिविटी को बदलना है, नहीं। ब्रेन
must get information from either outside the environment or from within the body to change the activity of the autonomic nervous system. So input comes from the emotions and visceral sensations. जो इंटेस्टाइन में वगैरह में जो सेंसेशन जनरेट हो रहे हैं वहां से इनपुट आना चाहिए. आउटपुट कहाँ जाएगा? न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड. So which part of the hypothalamus is involved in the control? Posterior sorry, posterior and lateral portion of the hypothalamus controls the sympathetic nervous system. ये हम hypothalamus पढ़ेंगे तब देखेंगे ये कहाँ होता है, इसका क्या फंक्शन है. It means if we stimulate the posterior hypothalamus or the lateral portion of the hypothalamus, then there will be an increase in the heart rate, inhibition of the gastrointestinal tract activity, and increase in the body temperature. While the anterior and medial portion control the parasympathetic, because stimulation of this area will result into copious sweating. Sweating will be there. Decrease in the heart rate, low blood pressure, increased GI tract secretion, and immobility, along with, of course, sweating will be there. Because anterior hypothalamus is more commonly involved in the regulation of the body temperature. तो आपका जो टेम्परेचर की वजह से स्वेटिंग जो होती है गर्मी में जाने पे वो सारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होता है. सो इन द देन हाइपोथैलेमस हो गया. अब उसके नीचे उतरते हैं हम. कंट्रोल कहां से आ रहा है? दूसरा वाजोमोटर सेंटर. इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. नेम सजेस्ट कर रहा है क्या? वाजो मीन्स ब्लड वेसल्स, मोटर मीन्स एक्टिविटी ऑफ द मसल्स. मसल्स की एक्टिविटी को मोटर एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. So vasomotor center located in the medulla oblongata controls both the activity of the sympathetic and not all parasympathetic, especially cardiac parasympathetic nerve. एक चीज यहाँ डिफरेंशिएशन के लिए मैं बता दूं कि sympathetic system is mostly activated throughout the body simultaneously if the need arises, while the activity of the parasympathetic is always discrete. पैरोटिड से सिक्रेशन बढ़ना तो पैरोटिड से ही बढ़ेगा, सब मैंडिबुलस से नहीं बढ़ेगा. ठीक है. हार्ट पे एक्शन आएगा तो सिर्फ हार्ट पे ही आएगा, बाकी जीआईटी पे नहीं आएगा. यूरिनरी ब्लैडर पे एक्शन आएगा तो वहीं आएगा वो, बाकी इंस्टेंस में नहीं आएगा. इट मींस इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक आर ऑलवेज लोकलाइज्ड. वो जनरलाइज्ड एक्शन कभी नहीं होते, जबकि सिंपैथेटिक के जब एक्टिवेट होता है तो एक्शन जनरलाइज्ड आते हैं हमेशा, ऑलवेज जनरलाइज्ड. That's why we call it as the cardiovascular system. Center located in the medulla oblongata control the sympathetic activity over cardiovascular system. CVS के ऊपर हार्ट और ब्लड वेसल्स पे जो एक्शन आ रहा है कंट्रोल का, वो वाजोमोटर सेंटर कंट्रोल करता है. क्या करेगा ये? इट रेगुलेट्स मोस्टली आइदर द ब्लड प्रेशर और द कार्डियक आउटपुट. ये दो मेजर चीजें हैं जिनका कंट्रोल जरूरी है. मूवमेंट टू मूवमेंट कंट्रोल इज देयर. So cardiovascular center or vasomotor center located in the brain stem has got three distinct areas. तीन different तरह के न्यूरॉन्स मौजूद है इसमें. इस एरिया में this area contains three distinct type of the neurons. One is known as the vasoconstrictor area. In this area, if the neurons are stimulated, they will cause vasoconstriction throughout the body. Vasoconstriction means blood vessels will decrease their diameter, and if the diameter decreases, then there is an increase in the resistance to the flow of the blood. Blood flow का resistance बढ़ जाएगा, blood pressure बढ़ेगा और blood flow घट जाएगा. Blood flow distal part में घट जाएगा और blood pressure बढ़ जाएगा. That is vasoconstrictor area. Second is the vasodilator area. When we stimulate this area of the vasomotor center, then there is no active relaxation of the muscle. No, ये इसको स्टिमुलेट करने से ऐसी कोई नर्व स्टिमुलेट नहीं होती जो जाकर के मसल को रिलैक्स कर दे. नहीं. स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया कॉजेज इनिबिशन और विड्रॉल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द वाजोकंस्ट्रिक्टर एरिया. तो वाजोकंस्ट्रिक्टर एरिया की एक्टिविटी को अगर कम कर दिया जाए तो वाजोडाइलेटेशन हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. एंड थर्ड इज द कार्डियो इनिबिटरी एरिया. Neurons of this part, when stimulated, causes specific inhibition of the activity of the heart. This area controls the vagal activity basically.
वेगस नर्व इज हाईली इनहिबिटरी टू द हार्ट, ये डिटेल बाद में आएगी। एंड फोर्थली, ये तीनों इफरेंट पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोनॉमिक के। फोर्थली, रिसेप्टिव एरिया, सेंसरी एरिया, रिले स्टेशन फॉर द एफरेंट नर्व, minded most of the activities of the heart are regulated reflexly। रिफ्लेक्स होती है सारी की सारी, और रिफ्लेक्स होने के लिए एक सेंसरी इनपुट होना चाहिए जिसके में रिएक्शन आएगा। सो फ्रॉम हार्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक, इंफॉर्मेशन अराइजेस फ्रॉम देयर अबाउट द ब्लड प्रेशर कितना है, फ्लो कितना हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के अंदर, और उस इंफॉर्मेशन से फिर आपका रिफ्लेक्स एक्टिविटी कंट्रोल होगा, मॉडिफाई होगा, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स को मॉडिफाई करेगा। सो दिस एरिया रिले स्टेशन इज अगेन लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज नोन एज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, एनटीएस शॉर्ट में कहते हैं इसे, एनटीएस कैपिटल में, एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस is the nucleus or neurons in the medulla oblongata which receives afferent impulses from the heart and the large vessels of the neck। हम इनकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। and those impulses modify the activity of the sympathetic and parasympathetic accordingly। बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो सारा का सारा फिर इन तीनों सेंटर से होता है बाकी। so this is the afferent input that is essential। NTS आ गया, this is NTS, nucleus of tractus solitarius, relay station for the afferent nerve and a cardio inhibitory area is there। ये बाद में बात करेंगे। Then these were the sub cortical centers। हाइपोथैलेमस हो गया, तो आज जो मोटर सेंटर होगा, हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। लास्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऐसा नहीं कि ये चुपचाप देखता रहता है, यहाँ भी कंट्रोल है थोड़ा बहुत। एरिया 13 ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स डू इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्टिमुलेशन कॉजेज कार्डियक एक्सेलरेशन, एरिया 13 आगे बात करेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे जब कहाँ होता है ये। causes increase in the BP via the hypothalamus, mind it, but all actions of the cerebral cortex over the autonomic nervous system, they are modified via two routes। दो रूट अवेलेबल है उसके लिए। वन इज द एरियाज और पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन, जो आपके बॉडी के सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो कहता है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक कॉर्टेक्स ओल्डेस्ट एरिया है ब्रेन का। एंड दैट लिम्बिक कॉर्टेक्स also affects the autonomic activity through the hypothalamus। So cerebral cortex, limbic cortex, hypothalamus, and then down to the autonomic nervous system। That is the way the things are controlled as far as the ANS is concerned। ये हम बात कर चुके हैं। cholinergic transmission, neurotransmitter style choline at autonomic ganglia, at parasympathetic effector organs, or sympathetic effectors like sweat glands and erector pili muscle, neuromuscular junction, and in the central nervous system। So these are the areas showing the cholinergic transmission। Okay, receptors हो गए N1 type, N2 type, जहां होते हैं हम देख चुके हैं ऑलरेडी। muscarine receptors M1, M2, M3, M4, M5 excited by muscarine। norepinephrine, the neurotransmitter of the sympathetic nervous system, receptors are alpha receptors, alpha 1 and alpha 2। अल्फा 1 और एक्साइटेटरी प्रेजेंट, अब ये आ रहा है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा 1 जो एक्साइटेटरी है, वेयर एवर वी वांट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द ल्यूमिनल अपर्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स, अल्फा रिसेप्टर्स आर फाउंड देयर। दे विल कॉज vasoconstriction wherever they are present। So blood excitatory alpha 1 receptors are found in the blood vessels of the skin and gut। They are least important areas in the conditions of emergency। So whenever we want to decrease their blood flow, we activate the sympathetic। तो स्किन जो है ठंडी पड़ जाएगी, पसीना आ जाएगा,
और गट की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो। स्फिंक्टर्स ऑफ जीआईटी एंड यूरिनरी ब्लैडर, जीआईटी की आप मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो तो स्फिंक्टर्स का टोन बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि चीज आगे ना बढ़े। तो स्फिंक्टर टोन इज इंक्रीज इन द जीआईटी। यूरिनरी ब्लैडर, इमरजेंसी में तो आप सोच नहीं सकते आप पेशाब करने जाएंगे ना, वो इनिबिट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक इनिबिट होगा, सिंपैथेटिक एक्साइट होगा, डिट्रूसर मसल स्लाइटली रिलैक्स हो जाएगी, ट्राइगोन का जो टोन है बढ़ जाएगा स्फिंक्टर का, और आपका पेशाब का जो मन में हाजित होती है कहने करने के लिए, द डिजायर टू पास द यूरिन विल डिसअपियर फॉर सम ड्यूरेशन टाइम एज लॉन्ग एज द इमरजेंसी इज देयर। रेडियल मसल्स ऑफ द आइरिस, आंख प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी होती है तो आपको बहुत फाइन डिटेल्स नहीं चाहिए, आपको ग्रॉसली दिखना चाहिए हो क्या रहा है कुल मिला करके, तो प्यूपिल डायलेट हो जाती है तो ज्यादा एरिया दिखता है आपको, हालांकि साफ कम दिखेगा मगर दिखेगा ज्यादा एरिया, वो आपको मदद करता है। तो डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिलरी मसल्स इज देयर एंड दीज अल्फा 1 रिसेप्टर्स दे आर इक्वली सेंसिटिव टू बोथ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, दोनों को रेस्पॉन्ड करते हैं ये बड़ी बात है। Of course, they are excitatory, and then alpha 2 receptors, they are inhibitory in nature, as I have said. How they are inhibitory? Actually, their mechanism of action is very some weird type action है, अजीब तरह का एक्शन है। alpha 2 receptors तो होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक और इफेक्टर एंड ऑर्गन्स के ऊपर रिसेप्टर वहां मौजूद है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुई एक नर्व एंडिंग से, और वहां पे जाके जो है वो क्या करता है, जब बाइंड होती है उससे रिसेप्टर से, तो और अल्फा 2 और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को घटा देती है। इट इटसेल्फ डिक्रीजेज इट्स ओन रिलीज फ्रॉम द प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग, तो ये अपने आप को इनिबिट करती है, ये आगे एक्साइट नहीं करती, इट कॉजेज इनिबिशन, इट डिक्रीजेज इट्स ओन रिलीज फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, so there is a less effect upon the effector end organs wherever the alpha 2 receptors are found. That's why we call these receptors as the inhibitory receptors. Beta receptors, as I said, beta 1 are cardio specific. Beta 1 receptor ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ोगे मेडिसिन में। बीटा 1 आर कार्डियो स्पेसिफिक, मतलब हार्ट मसल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो बीटा 1 रिसेप्टर्स है सबसे ज्यादा एबंडेंट। इसके जानने का एडवांटेज ये है कि अगर हम ऐसी कोई दवा देना चाहते हैं जो सिर्फ हार्ट पे ही इफेक्ट करे, बाकी बॉडी पे सिंपैथेटिक को इफेक्ट ना करे, तो वी कैन डेवलप द ड्रग ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द बीटा 1 रिसेप्टर ओनली। बहुत कॉमनली काम आती है मेटोप्रोलोल जो ड्रग है, वो हार्ट के पेशेंट में लगातार देते हैं, देनी पड़ती है लगातार, मैं भी ले रहा हूँ। This is beta 1 selective beta 1 blocker drug is there. Blocks the action of norepinephrine on the heart itself. बाकी बॉडी में इसका कहीं एक्शन नहीं दिखेगा। So that is the advantage of knowing these receptors and the neurotransmitters. So beta 1 receptors are excitatory located in the heart. हार्ट का एक्टिविटी बढ़ाना है तो बीटा 1 की स्टिमुलेंट देंगे हम, इसकी एक्टिविटी घटाना है तो बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर दे सकते हैं। Beta 2 receptors are, as I said, inhibitory in nature. So wherever we want dilatation of the blood vessels or relaxation of the smooth muscle fibers, then beta 2 receptors are present there. कहाँ होंगे? Blood vessels और the skeletal muscles, bronchial smooth muscles, GIT walls, urinary bladder, यहाँ सब जगह beta 2 receptor है, and they causes relaxation of the smooth muscle fibers. Now there is a difference. These receptors, as you can see, they are more sensitive to adrenaline in comparison to the noradrenaline. पहले वाले अल्फा वाले दोनों को बराबर बराबर रेस्पॉन्ड कर रहे थे, यहाँ रेस्पॉन्ड बराबर नहीं है। इसके अंदर किसको कर रहे हैं? एड्रेनलिन को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं बजाय नॉर एड्रेनलिन के। इसका मतलब सिंपैथेटिक अगर स्टिमुलेट करें तो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स क्या रिलीज करेंगी? नॉरएपिनेफ्रिन करेंगी, मगर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। मगर वही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उसी समय इट विल कॉज रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बोथ हार्मोन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला।
वो सिंपैथेटिक का पार्ट है और वो ब्लड में सर्कुलेट करता है एड्रेनलिन। ब्लड में जो एड्रेनलिन मौजूद है वो सारी एड्रेनल मेडुला से ही आ रही है आपकी, और कहीं से नहीं आ रही। तो सिंपैथेटिक उसको सिक्रेट नहीं करता, एड्रेनल मेडुला करती है, और उसका हार्ट पे इफेक्ट रिलेटिवली ज्यादा है। बीटा 3 एज आई सेड आर प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू। तो जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होते हैं या बीटा 3 पे जब एक्शन आता है, देन देयर विल बी लाइपोलाइसिस, फैट कम होनी शुरू हो जाती, लाइपोलाइसिस होता है। दैट वाज अबाउट द सिंपैथेटिक। अब एड्रेनल मेडुला के बारे में बाद में बात करेंगे, हम आते हैं एक्शन के ऊपर। ये पढ़ेंगे हम एक्शंस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्व। ऊपर से शुरू करते हैं। आई, in the eye, intraocularly, two areas are there which need and modification is there of the activity. One is the ciliary muscles and second is the muscles of the iris diaphragm. Iris diaphragm, if you remember, यहाँ वो सुविधा नहीं है जो मैं बोर्ड पे बता सकूं। Iris is there, it is the diaphragm, and in the center is the pupillary aperture through which the eye passes and reaches to the retina. This iris diaphragm contains two types of the muscles: circularly placed muscle fibers and radially placed muscle fibers. When circularly placed muscle fibers are excited, they contract and causes reduction in the pupillary diameter. When radial muscles contract, they draw outward and pupillary diameter increases. So, pupillary constrictor muscle or circularly placed muscle fiber, they cause a decrease in the pupillary diameter. Pupillary constriction कहते हैं उसे, and sympathetic acting via the radial muscle causes pupillary dilatation by causing contraction, not relaxation, by causing contraction of the radially placed muscle fibers. तो radially placed muscle fibers अगर contract करती हैं तो pupil dilate हो जाएगी, और circularly placed करती है तो pupil constrict हो जाएगी। ये तो हुआ सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक का एक्शन प्यूपिलरी एपर्चर के ऊपर और आइरिस के ऊपर। सेकंड मसल इज द सीलियरी मसल। Ciliary muscles has got very little sympathetic supply, but it has got a profuse parasympathetic supply. So whenever there is a pupillary constriction, parasympathetic action हुआ, pupillary constriction हुआ, उसके साथ लेंस का डायमीटर चेंज होना जरूरी है। लेंस डायमीटर changes and it causes increase in the dioptric power of the lens, which is essential for near vision. तो जब भी आदमी पास में देखेगा तो उसका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और सीलियरी मसल की वजह से लेंस का डायमीटर बढ़ जाएगा, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। तो जो डाइवर्जेंट रेज अंदर घुसेंगी वो ज्यादा बेटर फोकस हो पाएंगी। सो इन द आई, sympathetic causes pupillary dilatation and little effect upon the ciliary muscles. Parasympathetic causes pupillary constriction and change in the diameter of the lens by causing contraction of the ciliary muscles, which draws on the suspensory ligament. It causes loosening of the capsule of the lens. Lens is elastic in nature. It increases in diameter. Its power increases. So with the help of sympathetic, eyes accommodate for a far vision. With the help of parasympathetic, eye accommodate for the near vision. तीसरा एक्शन डेफिनेटली और आता है जब आपका जब पास में देखते हो तो दोनों आई कन्वर्ज और होती है, बट दैट इज एक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। वो मीडियल रेक्टाई कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके वजह से तीसरा एक्शन आता है। सिंपैथेटिक कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन द टार्सल मसल्स आल्सो। टार्सल मसल यहाँ होती है लिड के अंदर, यहाँ भी सप्लाई जाती है और उसके आंख थोड़ी ज्यादा खुल जाती है, आंखें चौड़ी हो जाती है, टार्सल मसल के कॉन्ट्रैक्शन। पैरासिम्पैथेटिक का कोई एक्शन नहीं है वहां पे। Lacrimal gland secretion increases by the activity of the alpha receptors, alpha 1 receptors of the sympathetic. Parasympathetic also causes increase in the secretion. और lacrimal secretion normally होता रहता है, मगर उसके अलावा जब रोने धोने का काम होता है तो sympathetic से एक्टिवेट होता है और आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, वो भी lacrimation ही है। Then nasolacrimal gland, sympathetic, no effect is there. पैरासिम्पैथेटिक कॉजेज इंक्रीज इन द नेसोलैक्रिमल सेक्रेशन, नाक बहनी शुरू हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक से। सिंपैथेटिक का इफेक्ट नहीं है करीब। हार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन,
Sympathetic acts both via beta 1 and beta 2 receptor. ध्यान दीजिएगा, हार्ट में अल्फा रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं, वो डिस्क्राइब नहीं है ज्यादा। तो बीटा 1 से क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ बीटा 1 स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट is there is a tachycardia, increase in the heart rate is there. Second, increase in the force of contraction of the myocardium, मसल्स ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करती है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? हार्ट से ब्लड का आउटपुट पर मिनट बढ़ जाएगा, पर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा और पर मिनट भी बढ़ेगा। सो देयर इज इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, देयर इज इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट व्हेन सिंपैथेटिक्स आर एक्टिवेटेड। कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द इंपल्स इन द हार्ट, हम जानते हैं हार्ट में इंपल्स ऐसे नोड से राइज होता है और सारे में ट्रेवल करके और सब जगह पहुंच जाता है। इसकी वेलोसिटी बढ़ती है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाने में भी मददगार होती है। तो इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज देयर, इंक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ज्यादा एक्साइटेबल हो जाता है टिश्यू जो है। एक्साइटेबिलिटी के लिए क्या चीज जरूरी है? आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा है, पढ़ लिया होगा ना, आरएमपी। उसका कोई रोल है क्या? एनी रोल इन द एक्साइटेबिलिटी? एनी रोल? मैंने शायद पहले बताया था, आप नहीं बताया? नहीं बताया क्या? You see, every cell in the body has got a potential gradient across its membrane. लीवर सेल्स में भी होता है, मसल सेल में भी होता है, नर्व फाइबर में भी होता है, न्यूरॉन में भी होता है, किडनी में भी होता है। The value of that -5, interior is always negative, -5 minus, and that's all. But in case of skeletal muscle, it is -90, interior negative. In case of nerve fiber and neuron, it is -70. In case of heart, it can be -90 or -65, depending upon which type of tissue we are talking about. All those tissues which are having a resting membrane potential of more than -40 are excitable tissues in the body. They can be electrically excited. इससे नीचे अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी नहीं होती करीब करीब। तो बाकी बॉडी में भी सब में पोटेंशियल ग्रेडियंट तो है, मगर वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम -40 से ज्यादा का ग्रेडियंट होना चाहिए। इसका मतलब स्पेसिफिक टाइप की सोडियम और पोटेशियम चैनल जरूरी है इस काम के होने के लिए, जो कि और जगह नहीं होती। सो एक्साइटेबिलिटी उन टिश्यूज की बढ़ जाती है, हार्ट की बढ़ जाती है, जो सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करते हैं, और इस सब का नतीजा increase in the stroke volume is there and increase in the cardiac output is there. तो अल्टीमेट आउटपुट नतीजा क्या निकला इन सबका? कि ये चीजें बढ़ गई जिसकी जरूरत होती है। पैरासिम्पैथेटिक पे क्या इफेक्ट है? पैरासिम्पैथेटिक यू सी मींस वेगस नर्व। ऑलवेज रिमेंबर, हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है हम वेगस की बात कर रहे हैं, वेगस नर्व की बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर वी स्टिमुलेट वेगस नर्व इन द हार्ट रेट ऑलवेज डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस। मगर मैंने वहां एक टर्म यूज कर दिया, एक डाला एट्रिया। एट्रिया का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है, वेंट्रिकल्स का करीब करीब नहीं होता। रीजन बीइंग देन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वेंट्रिकल आर वेरी स्पार्सली सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। मतलब वेगस की सप्लाई करीब करीब नहीं आती वेंट्रिकल्स के अंदर। कंडक्टिंग टिश्यूज में तो मौजूद है, मगर वेंट्रिकल के मसल में जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करीब करीब नहीं होती। इसलिए वेंट्रिकल्स पे इफेक्ट नहीं दिखाया मैंने, एट्रिया की मसल्स पे फोर्स कंट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस ऑफ द इंपल्स ट्रेवलिंग, वेगस अरेस्ट कैन बी देयर। अगर एनिमल्स में हम वेगस को स्टिमुलेट करें इलेक्ट्रिकली तो हार्ट बंद हो जाएगा। इतना सीवियर इनहिबिशन करता है कि हार्ट बंद हो जाएगा। और इसका इफेक्ट हम पिक्चरों में भी देखते हैं। कई जो हीरो होते हैं विलेन का, यहाँ दबाते हैं जोर से, यहाँ दबाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। यहाँ वेगस नर्व है, कैरोटिड साइनस जिसको वेगस सप्लाई करती है, ग्लोसोफेरेंजियल करती है। ठीक है। और ये आपका कैरोटिड शीथ के साथ में वेगस नर्व आ रही है,
इंटरनल जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व। यहाँ जोर से किसी के दबाना नहीं, दबाने से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है और हार्ट इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। So it can cause vagal strong parasympathetic stimulation to the heart can result into vagal arrest of the heart, and as a result the stroke volume and cardiac output decreases on vagal stimulation। ठीक है, आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से।